नमस्कार। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। Before moving forward in this video, I would like to thank my all mentors, all my teachers, all my gurus for their contribution in my life. Thank you so much for showing me path. Thank you so much for enlightening me and eliminating darkness from my life. And thank you very much from bottom of my heart. I have never achieved so much if you have not shown faith in me and my ability. Thank you so much. As today is Guru Purnima, so I would like to talk with my students also. Thank you so much to all my students for their best wishes on Guru Purnima. You have sent me messages and emails for best wishes. Thank you very much. I feel so happy, so nice when my students call me and wish me for my contribution in their life. Thank you all. So today I would like to take a issue. I want to discuss a issue with my students. In this pandemic situation, there are many problems you must be facing. Like in pandemic, you cannot go outside. You have many other problems. There will be some network issues. There will be some, you are not able to connect with your teachers. Some of you are facing problems in submitting your assignments. There are many problems, but the thing is, you have to keep calm. You have to be patient about all these things. And depression is also a very important. हेलो स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो बीच में इंटरप्ट हो गई थी, तो फिर उसी के बाद से हम कंटिन्यू करेंगे कि आई वाज डिस्कसिंग अबाउट डिप्रेशन. Depression is a very serious issue in this time. This video is especially for these students, those who are preparing for some competitive exams, or they are in their final year. They want to give their entrance exam for various exams, for various admissions. So you have to think that this problem is not for you only. This is for all the people in the world, in worldwide, not only in India but in the world. So you have to be patient about this thing. And depression, there are many causes which are responsible for depression. So today I would like to discuss all these things also. First of all, in today's scenario, we see that our dependency is more on social media. Like we use Facebook, we use Insta, we use other social networking like WhatsApp and all. But we are less engaged with people. हमारा लोगों के साथ जो वार्तालाप होता है या फिर कहीं की जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत कम होता है. हमारा जो डिपेंडेंसी है वो किस पे बढ़ गया है, ज़्यादा सोशल मीडिया पे. तो सोशल मीडिया या फिर ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मैनी फ्रेंड्स हो आपके, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके रियल लाइफ में कोई एक ऐसा दोस्त नहीं है जिससे आप अपनी बात कर सकें. तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या चेंज करने की ज़रूरत है कि आप अपने रियल लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स को रखें जिससे कि आप डिस्कस कर सकें अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. तो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी कि मेरी एक स्टूडेंट है जिसका मुझे आज से 2 या 4 दिन पहले कॉल आया था. वो कोविड पॉजिटिव है. उसने मुझे बोला कि मैम मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है, आप मुझे बता दीजिए. फिर मुझे टीचर इंचार्ज से जो गाइडेंस मिली उसमें ये था कि पहले वो ठीक हो जाए, उसके बाद हम कंसीडर करेंगे कि कैसे आगे प्रोसीड करना है. तो बात करने के दौरान मुझे ये पता चला कि ये बीमारी होने की वजह से भी एक आइसोलेशन में आपको रहना पड़ता है. आपका इंटरेक्शन ख़त्म हो जाता है. सोसाइटी में आप बहुत आप अगर इस तरीके से आप बीमार हैं तो फिर लोग आपसे दूरी बनाते हैं. और ये रिक्वायरमेंट भी है क्योंकि एक
कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो इसमें आपको अलग रहना भी पड़ता है। लेकिन ऐसे टाइम में जब आप अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो आपको बहुत लो फील होता है। आप डीमोटिवेट होते हैं कि कैसे चीज़ें होंगी, कैसे जो है नॉर्मल सी आएगी। तो ऐसे टाइम में आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी जो है अंधेरे का या फिर डार्कनेस का एंड ज़रूर होता है। जितना डार्कनेस बढ़ेगा उतनी ही जल्दी आप जो है मॉर्निंग की तरफ मूव करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और दूसरा, आपके जो एम होने चाहिए, जो भी आपके जो एंड, मतलब एक मीन्स होता है और एक एंड होता है। मीन्स मतलब कि किन माध्यम को, कौन से माध्यम है जिसके द्वारा आप किसी साध्य को या फिर किसी एंड को जो है पाना चाहते हैं। जैसे कि आपको सक्सेस पाना है तो यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नॉट फॉर द सक्सेस। लाइक कि आपको प्रोसेस ऑफ लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, ना कि इसका क्या परिणाम होगा, आप सफल होंगे या नहीं होंगे। तो ये जानना, मतलब ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप अपने जो आपके घर में बड़े सदस्य हैं, जो लोग, जो आपके माता पिता हैं या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे आपको इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप आइसोलेटेड फील कर रहे हैं या फिर आपको अलोन फील हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि वो तो आपसे ज़्यादा बड़े हैं, तो उनके लाइफ में भी इस तरीके की चीज़ें फेस करते होंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको जो ज़रूरत है वो उनसे पूरी होगी और उनकी ज़रूरत आपसे पूरी होगी। तो मतलब ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद आपको जो अपना एम है उसे वाइडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। ये किसी पर्टिकुलर इंसान पर या किसी व्यक्ति पर फोकस्ड नहीं होना चाहिए कि मुझे ये काम इसके लिए करना है। आपके लाइफ में दो मोटिवेशन होते हैं, या एक लव होता है, एक पर्सनैलिटी होती है, एक इंस्पिरेशन होती है। तो मतलब इसमें आप किस चीज़ से इंस्पायर्ड है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका जो चीज़ों को पाने का या फिर कुछ भी आप जो अपने लाइफ में करना चाहते हैं वो वाइडर पर्सपेक्टिव में होना चाहिए। वो किसी एक पर्टिकुलर की लाइफ पर या फिर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर जो है फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि वो विस्तृत होना चाहिए। तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और कभी भी नेगेटिव थॉट्स आए तो आप उन्हें डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, अगर आप किसी के टच में हैं। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन ना आए कि आप बिल्कुल चुप हो जाएं और फिर आप बात ही ना करें और आपको लगे कि दिस इज़ एंड, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मतलब दिस इज़ वेरी मैंडेटरी कि आप अपनी बातें किसी से कहें, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। और कोई भी प्रॉब्लम बनती है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है, ये आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। कोई भी आज तक ऐसी प्रॉब्लम हुई ही नहीं कि जिसका कोई जो है सॉल्यूशन ना हो। ये बातें हैं आपको ध्यान में रखने की। और इसके अलावा एक यही मैसेज है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार में सभी लोगों का ध्यान रखिए और खुश रहिए। और बहुत सारी बेस्ट विशेस आप सभी के लिए। और कभी आपको ऐसा फील हो कि आप जो है क्या करें क्या ना करें, तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि जब हमारे अच्छे वाले दिन जो थे वो ना नहीं रहे, तो ये गंदे वाले भी दिन नहीं रहेंगे। मतलब कि अगर लाइफ हमारी अच्छी चल रही थी, आज ख़राब है, तो कल अच्छी होगी, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। और इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल एंड बेस्ट विशेस फॉर माय स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।